Hello class 12th, we are discussing chapter 6 stuffing. Today this is the last part we are going to discuss, in which on the job and off the job training difference and its types we will discuss, and after this session we will discuss some case studies in our next video. But today let's finish this chapter. So let's talk about on the job and off the job training methods. See, on the job training method in which training is provided at the workplace. ट्रेनिंग इज़ प्रोवाइडेड एट द वर्क प्लेस मीन्स काम करते हुए सीखना. ठीक है, जो वर्क प्लेस है वहीं पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है. वेयरएज ऑफ द जॉब मेथड्स इन विच ट्रेनिंग इज़ प्रोवाइडेड अवे फ्रॉम द जॉब, जॉब से दूर रहकर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है. इट्स मेन प्रिंसिपल इज लर्निंग वाइल डूइंग, काम करते हुए सीखना. वेयर एज मेन प्रिंसिपल ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इज लर्निंग बिफोर डूइंग, काम एक्चुअल जो काम किया जाना है उससे पहले ही सीखना. देन एम्प्लॉयज़ आर ट्रेंड एट देयर वर्क प्लेस, ये किस में होता है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग में. बट इन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ आर ट्रेंड अवे फ्रॉम देयर वर्क प्लेस. ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज़ मोर suitable for technical jobs, but off the job training is suitable for managerial jobs. ठीक है, जो managerial jobs होते हैं जिसमें administration work होता है, this training is suitable for them. Now on the job training में trainers कौन होते हैं? So employees are trained by experienced workers and qualified instructors. जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड जो वर्कर्स होते हैं वो ही न्यू वर्कर्स को ट्रेनिंग देते हैं, वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में. बट इन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ आर ट्रेंड बाय एकेडमिशियंस, प्रोफेशनल्स एंड टेक्नीशियंस. ओके, बिकॉज इट इज़ more related to managerial jobs, so academicians generally provide off the job training. And examples of on the job training are three types basically we will discuss in this chapter: apprenticeship training, internship training and induction training. Induction training को orientation training भी बोलते हैं. And in off the job training only vestibular training is there in your course. इसका एक और टाइप है लेक्चर ट्रेनिंग, बट लेक्चर ट्रेनिंग अभी आपके कोर्स से हट गई है, तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में केवल एक ही टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे. So first we will discuss on the job techniques. Okay, on the job training methods. पहला है apprenticeship program. Apprentice का मतलब होता है trainee. So trainee works under the guidance of a master worker who guides and helps him in learning the job. Okay, trainee spend a prescribed amount. Trainee means apprentice spend a prescribed amount with an experienced guide and are paid only nominal remuneration. उसको stipend मिलता है. ठीक है, ट्रेनी को. Trainee is usually absorbed in regular post on completion of his apprentice's his period. उसकी जो अगर ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाती है तो वो उसी जॉब में मर्ज हो जाता है. ऐसा नहीं कि उसको वापस जॉब से निकाल दिया जाता है, बिकॉज ट्रेनिंग पे बहुत सारा मनी, बहुत सारा टाइम स्पेंड होता है. सो दोज ट्रेनीज आर मर्ज्ड विद द रेगुलर जॉब. एंड दिस ऑन द जॉब ट्रेनिंग, दिस apprenticeship method is common in skilled trades such as electricians, plumbers, carpenters, etc. So electricians और plumbers, इनको जो more experienced employees होते हैं वो इनको training provide करते हैं, and afterwards they get the job in the same organization where they have got the training. Okay. Second type of on the job training method is induction training. Induction means a process of receiving and welcoming an employee when he first joins with the company and giving him basic information which he needs to settle down quickly and happily.
कंपनी में ज्वाइन करते ही एकदम से जो एम्प्लॉई है वो सेटल डाउन नहीं हो जाता, जब तक कि उसको जो भी जॉब करना है उससे रिलेटेड सारी बेसिक इन्फॉर्मेशंस ना दे दी जाए, उसको उसका क्या काम है उससे एक्वेंट ना करा दिया जाए, और उसको उसके साथ काम करने वाले जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनसे मिलवा ना दिया जाए। तो इसी को कहते हैं इंडक्शन या ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग में उसको पहले क्या काम करना है, उसके कौन कलीग्स होंगे, ओके, एंड to whom he will report, which type of job he is going to perform, what will be his duties, and all these things, all basic informations are provided to him. Okay, its purpose is to make the new employee feel at home. Okay, उसको कंफर्टेबल जॉब से, उसको जो भी काम वो करने जा रहा है उससे उसको एक्वेंट करवाना और उसको कंफर्टेबल फील करवाना, फील एट होम, ओके, एंड डेवलप अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर एन एम्प्लॉय। ओके, बिलोंगिंगनेस नहीं होगी तो वो उस कंपनी में अपना 100% नहीं दे पाएगा। इट मे बी फ्रॉम फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज। हर जगह ये ज़रूरी नहीं है कि सेम टाइम पीरियड उसमें लगे। इंडक्शन ट्रेनिंग में कहीं पे कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ घंटे भी लग सकते हैं। ओके, सच ट्रेनिंग मे बी गिवन विद द हेल्प ऑफ फिल्म शोज, लेक्चर्स एंड टूर्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। ठीक है, डिपार्टमेंट्स अगर हैं तो उसको सारे डिपार्टमेंट्स का एक राउंड लगा के बता दिया जाएगा, ठीक है, या फिर कोई फिल्म, जो ऑर्गेनाइजेशन की कोई फिल्म है तो वो उसको दिखा दी जाएगी। ओके, तो इस तरह से ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ओके, नाउ द थर्ड टाइप ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड इज इंटर्नशिप। इंटर्नशिप इज़ अ जॉइंट प्रोग्राम। इंटर्नशिप आपने सुना होगा, जैसे इंजीनियरिंग में बेसिकली या मेडिकल स्टूडेंट्स इंटर्नशिप करते हैं। आफ्टर गिविंग द थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ देयर कोर्स, दे आर सेंट टू द place where they get practical knowledge related to their jobs. Okay, so like engineering students are sent to business enterprises and medical students are sent to hospitals to get practical knowledge. तो internship एक joint program है basically, जो कि educational institutes और business firms के बीच में होता है। Okay, and under this classroom sections are backed with training. ओके, क्लासरूम सेक्शन के बाद में जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसमें वो ऑर्गेनाइजेशन में जाकर रियल लाइफ सिचुएशंस को फेस करते हैं और वहाँ पे वो ट्रेनिंग लेते हैं। ओके, सो ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स वी हैव डिस्कस्ड। नाउ लास्ट मेथड वी विल डिस्कस ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ओके, नाउ वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग विच इज़ द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। वेस्टिब्यूल का मतलब होता है डुप्लीकेट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जहाँ पे बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स हैं, मीन्स जो सोफिस्टिकेटेड मीन्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट्स हैं या एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स हैं, तो वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट इज़ क्रिएटेड इन अ क्लासरूम दैट इज़ डुप्लीकेट मॉडल और वर्कशॉप इज़ प्रिपेयर्ड। ओके, जो भी एनवायरनमेंट है वो एक डुप्लीकेट एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है ताकि कोई भी कॉम्प्लेक्स मशीन हो या कोई भी सोफिस्टिकेटेड मीन्स कोई भी एक्सपेंसिव मशीन हो उस पर काम किया जा सके। Employees are trained on dummy model instead of using original equipments। जैसे स्पेस साइंसेस में जो ट्रेनिंग दी जाती है तो वो ओरिजिनल इक्विपमेंट्स पे तो कैसे दी जाएगी, ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल स्पेस शटल को उड़ाना सिखाया जाएगा। तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, डुप्लीकेट मॉडल्स पे ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। या जैसे प्लेन उड़ाने की टेक्निक है तो वो वहाँ पे ओरिजिनल प्लेन पे नहीं, पहले वो ऐसी
सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करते हैं, इस तरह का डुप्लीकेट मॉडल क्रिएट करते हैं और वहाँ पे वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि केवल और केवल ये जो टेक्निक है ये केवल एक्सपेंसिव या सोफिस्टिकेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं या मशीन हैं, टूल्स हैं, उन्हीं पे ये यूज़फुल हो। समटाइम्स द अकाउंटेंट्स आर फर्स्ट सप्लाइड द डुप्लीकेट रजिस्टर्स to make entries in inventory or cash register. Okay, so in such cases also this type of training is also useful, where they are provided some duplicate registers to make the entries, and this is also a method of training. So that's all for today. Here we end our chapter. Now in next video we will discuss some case studies related to this chapter. Till then, goodbye. God bless you.